Why do I feel invisible? आपके डीप इमोशनल और सेल्फ वर्थ रिलेटेड वुंड्स क्या हैं? आपके चाइल्डहुड वुंड्स क्या हैं? उन सब से रिलेटेड आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम मेजरली इनविजिबिलिटी को लेकर आपका जो वुंड है, उस वुंड के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उस वुंड को कैसे ठीक किया जा सकता है, उस वुंड को कैसे हील किया जा सकता है, उस चीज के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। तो टोटल 9 क्वेश्चंस है यहाँ पे इस रीडिंग में, जिसमें पहले एक हम कॉमन देखेंगे कि वो क्या इमोशंस हैं जो जनरेट होते हैं जब आप इनविजिबल फील करते हो, जब आपकी प्रेजेंस एक्नॉलेज नहीं होती है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो वुंड क्रिएट कर रही हैं आपके लाइफ में। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कि उस वुंड को हील करने के लिए, उस अपनी हील्ड सेल्फ को एक न्यू आइडेंटिटी में टैप इन करने के लिए वो क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सो विद दैट इंफॉर्मेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग। What feelings arises? What feelings arises जब हमारे व्यूअर्स इनविजिबल फील करते हैं, जब उन्हें acknowledged और noticed फील नहीं होता? Okay, we have got the first card as Ace of Cups. Here is the card. Where did I first learn that my presence didn't matter? Where did I first learn that my presence? Where did the viewers learn that their presence didn't matter? Where did the viewers learn their presence didn't matter? Where did the viewers learn their presence didn't matter? We have got Ten of Pentacles. Okay. Next is, sorry, I'm looking there because I have written all the questions down there so that I don't forget anything. So while I'm shuffling and taking out the cards, आपको मेरी नजर थोड़ी left side में जाती हुई दिखेगी. So the next question is, what belief about myself was created at that time? What belief about themselves my viewers created at that time? What belief my viewers created at that time? What belief about themselves my viewers created at that time? And we have got Six of Wands. Okay. Next is, how do I unconsciously keep recreating invisibility in my present life? And how do they keep recreating this invisibility in their present life? We have got Four of Swords. ठीक है. Next is, what part of me learned to disappear to stay safe? What part of my viewers learned to disappear to stay safe? Okay, we have got two cards here and I will take those two cards. Next, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं इस चीज को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए. So, what my inner child needs right now to feel seen and safe? What my viewers' inner child needs right now to feel seen and safe? We have got two cards. All right, what new truth about my worth am I ready to embody now? Oh my God, there are multiple cards coming here. So reading थोड़ी लंबी होने वाली है. And guidance में बहुत सारे cards आ रहे हैं, multiple cards आ रहे हैं, which means कि यहाँ पे ना बहुत से options आपको दिए जा रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरह की चीजों से आप अपने इस invisibility wound को heal करके इससे बाहर आके अपनी आइडेंटिटी को ब्रेक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो. What message does my nervous system needs to hear so it feels safe being seen? वो क्या मैसेज है जो नर्वस सिस्टम को सुनना है जिससे उसे सेफ्टी महसूस हो, सीन होने में और दिखने में? We have got Three of Cups. Beautiful. What small loving action can I take to honor my visibility and worth now? Okay, I'll take a few cards. I think kuch cards aaye the, but I just want to shuffle a little bit more and then take the cards. Okay, a lot of cards are here, especially for the last part. Okay, so what I will do is I will do one by one, एक एक करके I will do the reading. तो सबसे पहला जो सवाल था, क्या इमोशन है जो आपके अंदर अराइज करता है जब आप इनविजिबल फील करते हो,
जब आपकी फीलिंग को नोटिस नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता। सो यहाँ पे व्हाट आई एम गेटिंग इज यू फील वेरी स्मॉल, यू फील टाइनी। एक इंफीरियोरिटी की फीलिंग आ जाती है जब आपको नोटिस नहीं किया जा रहा होता है, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता है। यू फील डिनाइड, यू फील रिजेक्टेड, यू फील डिसमिस्ड। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के इमोशंस, दैट कि आपका एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। nobody is noticing you, this is how you feel, it just it feels very पिंचिंग। ये ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से कुछ सिकुड़ गया है आपके अंदर। उस तरह की फीलिंग, उस तरह का इमोशन अराइज होता है जब आपको नोटिस नहीं किया जाता। यू फील स्मॉल, यू फील डिमिनिश्ड, यू फील कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के इमोशंस अराइज होते हैं आपके अंदर, एक इंफीरियोरिटी जाग जाती है। आप अपने आप को ना, हीनता की भावना आपके अंदर आने आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि इस तरह के सवाल आपके मन में दौड़ना शुरू हो सकते हैं कि मैं हूं ही कौन और मैं हूं ही क्यों। आप अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल कर कर लेते हो इन मोमेंट्स में, जब आपको नोटिस नहीं किया जाता। हमारा अगला सवाल था कि ये पैटर्न, ये इनविजिबिलिटी और ये महसूस आपको पहली बार कब हुआ, जब कि आपकी प्रेजेंस मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे हमने 10 ऑफ पेंटिकल्स पाया है। एंड यहाँ से आई एम गेटिंग अवॉइडेंस, कि समहाउ फैमिली स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको अवॉइडेंस मिली है। मे बी आप आपके फैमिली में लोग ज्यादा थे, या अगर छोटी फैमिली भी थी तो कोई था नहीं अच्छे से ध्यान देने के लिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप पे ध्यान कम दिया गया। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ध्यान नहीं दिया गया। हम चाहें तो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को, अपने एल्डर्स को ब्लेम कर सकते हैं, बट उससे सोल्यूशन नहीं आएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन देयर कि उन्होंने क्यों ऐसा किया आपके साथ। बट हम ज्यादा उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं कि जिसकी इंफॉर्मेशन के साथ, जिसको जानने के साथ आपको मूव फॉरवर्ड करने में, आपको आगे बढ़ने में थोड़ी मदद मिले। तो मोस्टली आई एम गेटिंग कि पीपल अराउंड यू वर बिजी, अपनी अपनी चीजों में वो सब बिजी थे, उनके पास इतना समय नहीं था आपको दे पाने के लिए। एंड समवेयर आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू वर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एज। आपके पास थोड़ी अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी थी। इस वजह से शायद इस तरह की चीजें अपने आप हो गई। किसी ने जानबूझ के आपके साथ कुछ भी नहीं किया, बट अपने आप हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि आप शायद खुद को संभाल लोगे। बट कहीं ना कहीं आप भी तो बच्चे थे, और एक बच्चे को चाहे वो कितना भी समझदार, कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी जल्दी चीजों को समझता क्यों ना हो, उसे प्यार और अटेंशन तो चाहिए। उसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या बिलीफ क्रिएट हुआ आपके अंदर। तो जो बिलीफ क्रिएट हुआ ना, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड हियर आई कैन सी कि आपने ये बिलीव कर लिया कि मैं अकेला हूँ। यू नो मुझे अकेले ही सब कुछ करना है अपने लिए। कोई और नहीं है, कोई और नहीं है मेरी मदद के लिए, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। इफ यू सी इन दिस कार्ड, आई मीन या आई कैन शो यू दिस कार्ड हियर ऑल्सो। एनीवे यू विल बी सीइंग, आपको दिख रहा होगा साइड में कहीं पे एक पूरा कार्ड का स्प्रेड। दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग यू द कार्ड्स अपने हाथ में लेके। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अकेला बंदा है, और ये इस सारे घोड़े यहाँ पे हैं, इतने सारे डियर्स हैं यहाँ पे। उनको वो, इन जानवरों को वो देख रहा है। तो समवेयर व्हाट आई एम फीलिंग इज कि आपने ये देखा, आपको ये लगा कि आप अकेले हो और आपको अपना ख्याल खुद रखना है। तो यस, अवॉइडेंस थी, अवॉइडेंस का एक पेन भी आप कैरी कर रहे हो। बट उस पेन ने आपको, आई कैन से दैट कि उस पेन ने आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाया। उस पेन ने आपको, आप थोड़ा डिफेंसिव भी बना दिया। डिफेंसिव इन द सेंस कि जब मदद अवेलेबल भी है, तो भी आप अब मदद लेना नहीं चाहते हो। यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी। दिस काइंड ऑफ थॉट कैन बी रनिंग इन योर हेड कि नो, मेरे को ही करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट बाई माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू इट माई वे। इस तरह की चीजें, इस तरह के इमोशंस हो सकते हैं आपके। इस तरह का बिलीफ बेसिकली क्रिएट होना कि सब कुछ अकेले ही करना है, अपने आप से ही करना है, किसी की भी मदद नहीं मिलेगी, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वाज हाउ अनकॉन्शियसली आप इस पेन को रिक्रिएट कर रहे हो।
तो वहां पे हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स आया। तो फोर ऑफ सोर्ड से आई एम गेटिंग दिस वाइब नो कि इट्स लाइक कि आप याद करते हो बैठ के उन मेमोरीज को। आप कहीं ना कहीं उन मेमोरीज को भूलते नहीं हो। आप जानबूझ के ना अपने आप को सैड करते हो, सैडनेस में ले जाते हो, और सैडनेस में जाके आप वो मेमोरी रिक्रिएट कर रहे होते हो। बिकॉज हियर वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज कि क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें अपने आप संभालना सीखा, खुद से करना सीखा, इसकी वजह से आपके अंदर बहुत से स्किल सेट्स भी डेवलप हुए, जिसकी वजह से आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि यू वो हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर फॉर योर सेल्फ एंड आप ये चीजें कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं ये पेन भी रहा आपके अंदर कि मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ा। आई डेंट गेट एनी हेल्प विच आई नीडेड, विच आई वॉन्टेड। तो वो पेन कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहर गया है। और कभी भी आप जब आप इस पर्सन को देखो ना, तो ये बिल्कुल गिर चुका है इस बोट में। तो रिक्रिएट करते हो आप ऐसे ना कि आप जानबूझ के यू सिट एंड यू जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द ओल्ड मेमोरीज दैट यू हैव। आप अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हो जानबूझ के, और अच्छी मेमोरीज को याद नहीं करते हो, पुरानी मेमोरीज को याद करते हो। आपको आदत हो सकती है अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करने की लोगों से, कि ये स्ट्रगल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो वुंड जो है वो कभी हील नहीं हो पाता, क्योंकि आप बार बार उस पे नजर लेकर जा रहे हो, बार बार उसे छू रहे हो। So this is how you are recreating, by talking about it again and again, and by thinking about it again and again. Now the question is, what part of you learn to disappear to stay safe? And यहाँ पे जो दो cards आए हैं ना, three of swords का card, whenever it comes, I feel a lot of pain. I feel कि बहुत कुछ इस person ने देखा होगा अपनी लाइफ में, तभी ये कार्ड आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपके किस पार्ट ने डिसअपियर होना सीखा इन ऑर्डर टू बी सेफ? तो आई वुड से कि आपके हार्ट ने, यू क्लोज्ड योर हार्ट। आपने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर लिए, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा गार्ड कर लिया। तो लोगों को आपको देख के ये लगता होगा कि ये बहुत ही टफ पर्सन है, इसके अंदर ये इमोशंस को समझ नहीं पाएगा, ये भावनाओं की उतनी कदर नहीं करता ये इंसान किसी की। बट द ट्रूथ इज कि ये एक लर्नेड बिहेवियर है जो आपने सीखा, कि अगर जीना है, अगर जिंदा रहना है, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, दिल को पीछे रखना होगा, भावनाओं को पीछे रखना होगा, और सिर्फ प्रैक्टिकल होके, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें रिजल्ट्स लेकर आ रही हैं, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी, उन चीजों पे आपने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो आपके दिल ने डिसअपियर होना, आपकी भावनाओं ने डिसअपियर होना सीख लिया इसके इसकी वजह से। और उसके बाद हमारे पास एक और कार्ड आया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। और फॉर सम पीपल आई एम आल्सो गेटिंग कि कुछ लोगों ने ना यहाँ पे शायद थोड़ी डिसऑनेस्टी भी सीखी है। आपके अंदर जो ऑनेस्टी थी, आपके अंदर जो इनोसेंस था, बेसिकली आई वुड, मोर देन ऑनेस्टी, आई वुड लाइक टू यूज द टर्म इनोसेंस, कि जो आपके अंदर की जो इनोसेंस थी ना, वो छिप गई। आपका हार्ट, आपके अंदर का बच्चा, आपकी इनोसेंस वो आपसे दूर चली गई, एंड यू वर लेफ्ट विद अ वेरी, नॉट अ वेरी, बट somewhat cold heart. This is what I can say here. So yes, I don't know how much of it is resonating with you guys, but yeah, this is a very good reading, I would say. बहुत सारी information हमें समझ में आई, हमें पता चला कि कहाँ ये पहले आपकी लाइफ में हुआ, ये पैटर्न अपीयर हुआ, क्या बिलीफ क्रिएट हुआ, और आप कैसे उसे बार बार रिक्रिएट कर रहे हो अब अपनी लाइफ में, और आपके किस हिस्से ने डिसअपियर होना सीख लिया। तो ये सारी इस इंफॉर्मेशन ने हमें बहुत कुछ बताया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो हमें ये बताएगी कि अब कैसे हम अपने इस वुंड को हील करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, और एक्चुअली में कंफर्टेबल हो सकते हैं बीइंग सीन, दिखने के साथ। और क्योंकि इनविजिबिलिटी का जो वुंड जो है, वो हमें एक फियर भी क्रिएट कर देता है, कभी कभी फियर ऑफ बीइंग सीन। तो कैसे हम उस फियर से बाहर हो सकते हैं, और कैसे हम
कोई हमें नोटिस करे, एक्नॉलेज करे ना करे, कैसे हम उस सिचुएशन में भी अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आत्मविश्वास को रिटेन कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट माय इनर चाइल्ड नीड्स राइट नाउ टू फील सीन एंड सेफ। तो आपके इनर चाइल्ड को अभी सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सीन के लिए और सेफ के लिए? सी, एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ गया। आई मीन यू कैन से कि कोचेस, थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, ये लोग मिरर वर्क की बात बहुत ज्यादा करते हैं। एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो टॉक अ लॉट अबाउट मिरर वर्क, यू नो, बट अभी उतना किया नहीं है। विद दैट ऑल्सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट यहाँ पे कार्ड्स में इनर वर्क का, मिरर वर्क का मैसेज आया है। जस्ट लुक एट योर सेल्फ। आपका इनर चाइल्ड अभी चाहता है कि आप सामने खड़े होके उसको देखो, एटलीस्ट कि वो किस स्थिति में है। आपके मुंह फेर लेने से स्थिति बदल नहीं जाएगी। तो वो आपको कह रहा है कि एक बार देखो तो सही कि मैं किस स्थिति में हूँ, टॉक टू मी। एंड देन वी हैव गॉट फाइव ऑफ सोर्ड्स। एंड अगर हम फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें, तो यहाँ पे दिस पर्सन इज स्टैंडिंग विद अ स्वॉर्ड, सॉरी नॉट अ स्वॉर्ड, बट वो एक धनुष के साथ यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आर्चरी के लिए वो यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है फाइव ऑफ सोर्ड्स में? दैट प्रोटेक्ट, यू नो, you need to be with your inner child and you need to protect your inner child. आपकी inner child अभी आपसे प्रोटेक्शन मांग रही है, सेफ महसूस करने के लिए, सीन महसूस करने के लिए। एंड हियर आई वांट टू टेक आउट वन मोर कार्ड, यू नो कि what is it the viewers can do to protect their inner child. What is it the viewers can do to protect their inner child? Okay, and we have got nine of wands here. Nine of wands का कार्ड आ गया जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। एंड नाइन ऑफ wands में भी आप देखोगे ना, तो wands ऐसे खड़ी हैं। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज, कि आपको बाउंड्रीज की जरूरत है अपनी लाइफ में। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा, आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीजें हैं या कौन से लोग हैं, कौन से सिचुएशंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। सो यू नीड टू क्रिएट सम बाउंड्रीज विद पीपल। आपको सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने की जरूरत है कि व्हाट आर योर बाउंड्रीज। कहाँ तक आप किसी पर्सन को एंटरटेन करोगे, कहाँ तक आप किसी पर्सन की बात सुनते रहोगे, कहाँ पे आप उसको जवाब दोगे, कहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड करोगे। सो यू नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई योर ओन बाउंड्रीज, एंड देन उन बाउंड्रीज के हिसाब से आपको अपने जीवन में एक्ट करने की जरूरत है। तब आप अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर पाओगे। व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर इनर चाइल्ड, थिंक ऑफ इट लाइक यू हैविंग योर ओन चाइल्ड। आप अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उसके लिए कैसी बाउंड्री सेट करोगे लोगों के साथ, हु कैन टॉक टू देम, कौन उसके साथ खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता है। ये सारी बाउंड्रीज हम क्रिएट करते हैं सो दैट हमारा बच्चा सेफ रहे, साउंड एनवायरमेंट में रहे। द सेम थिंग यू हैव टू डू, कि कौन से लोग हैं जिनकी बातों से आपका इनर चाइल्ड बहुत हर्ट हो जाता है, और उन लोगों से आप अपने आप को सेपरेट कीजिए। एंड यहाँ पे आई रियली वांट टू मेंशन दिस पॉइंट ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको हर्ट करने के इंटेंशन से ही चीजें बोल रहा हो, क्योंकि हर इंसान के कुछ वूंड्स होते हैं, और लोग नॉर्मली भी बातें कर रहे होते हैं ना, तो हम हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा उससे रिलेटेड वूंड है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट्स नॉट ऑलवेज द अदर पर्सन फॉल्ट। लोग अगर चाहे भी ना, तो भी हर समय आपकी खुशी का, आपकी प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो आपको उतनी अच्छे से नहीं जानते, वो आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके ऊंस को नहीं समझते जितना आप समझ पाओगे। तो आपकी प्रोटेक्शन का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। बाकी लोग तो इस इक्वेशन में बहुत बाद में आते हैं। तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। सो व्हेन आई से बाउंड्रीज, नॉट कि आपको लोगों को शट ऑफ करना है, वो आप पहले भी कर चुके हो। आपने पहले भी जब हमने ये बात की कि व्हाट पार्ट ऑफ यू डिसअपियर्ड, तब यही मैसेज आया कि आपने गार्ड कर लिया अपने हार्ट को। एंड यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि गार्डिंग इज वेरी मच डिफरेंट दैन क्रिएटिंग बाउंड्रीज। बिकॉज बाउंड्री हम कंपैशन के स्टेट ऑफ माइंड से जब क्रिएट करते हैं,
तो बाउंड्री हमें भी सुकून देती है और सामने वाले को भी सुकून देती है। तो यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज इन सच अ वे दैट यू डू नॉट हर्ट द अदर पर्सन, यू नो। हमें बाउंड्री क्रिएट करने के लिए किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। ना बोलने के कई सारे तरीके होते हैं। तो कंपैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने लिए कंपैशनेट हो जाओ। कंपैशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए भी हो और आप दूसरे की स्थिति भी समझ रहे हो, दूसरे के लिए भी कंपैशन आपके अंदर है। और अब आप उस स्टेट से एक्शन ले रहे हो सो दैट हम दोनों का ही एक वेलबींग बना रहे, आगे बढ़ता रहे। All right. So boundaries and compassion पे, you know, if I start talking and we start working, तो ये अपने आप में एक अलग ही वीडियो क्रिएट हो जाएगी. So I'll stop here and probably in some other reading we'll focus more on boundary creation. So now अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि what new truths about your worth you are ready to embody now. तो अपने worth के बारे में वो कौन से नए सच हैं जो रेडी हो आप embody करने के लिए, जो रेडी हो आप जीने के लिए। तो हमारे पास तीन कार्ड्स हैं यहाँ पे। वन इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन वी हैव एट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ wands, ओके। तो वन बाय वन आई एक्सप्लेन द कार्ड्स टू यू। तो सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके वर्थ के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको बताना चाह रहा है ना कि यू आर वेरी क्रिएटिव, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। तो अपनी क्रिएटिविटी को इम्बॉडी करना शुरू करिए। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्बॉडी करोगे, आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ कुछ चीजें बनाओगे, ये आपको हील करेगा। दिस इज द फर्स्ट न्यू ट्रूथ दैट यू आर रेडी टू embody. Next is Queen of Wands. I picked up the Queen of Wands card first. तो यू नो, अगर आपको ध्यान में आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड देन वी हैव गॉट, दोनों में ही ये दोनों अकेले खड़े हैं, है ना। यहाँ पे वो घोड़े पे बैठा है, उनको संभाल रहा है, देख रहा है, और यहाँ पे शी इज लीडिंग देम। सो व्हाट इज इट टेलिंग यू दैट यू नीड टू, आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको एक बहुत ही बेहतर लीडर बनाया है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे ये इन पशुओं को, इन जानवरों को लेके जा रही है, उन्हें सही रास्ता दिखा रही है। एंड इफ यू सी, दीज आर बुल्स बिहाइंड हर एंड शी इज लीडिंग बुल्स। तो और बुल्स को काबू में करना कितना मुश्किल होता है, यू नो दैट। तो क्या मैसेज है यहाँ पे, दैट द काइंड ऑफ capability you have grown in yourself, it can handle बड़े से बड़ा challenge, बड़े से बड़ा situation. So you, it's time for you to embody this truth कि आपके उन experiences ने, जहाँ पे आपने सारा कुछ अपने लिए खुद से किया, आपने उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, उसने आपको जिंदगी में हर तरह की बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना सिखाया है। तो this is something that you need to embody now, that you have become a great leader because of your experiences. And then we have got eight of cups. And eight of cups say, what I'm getting is that acknowledge, acknowledge. अगर आप देखो ना तो इस कार्ड में यहाँ पे सूरज आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको चांद दिखेगा। सूरज ज्यादा प्रोमिनेंट है, चांद थोड़ा कम प्रोमिनेंट है। you know it's like that you need to acknowledge, you need to embody अपने अंदर की फेमिनिटी। हम वेदर जो भी आप देख रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पे मैसेज ये है कि हमें, आपको अपने अंदर की फेमिनिटी को अब आप एम्बॉडी करने के लिए तैयार हो। जरूरत नहीं है आपको कि आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एंडेवर लेके रहो। लीडरशिप क्वालिटीज है आप में, यस, आप वो कर सकते हो, बट एट टाइम्स यू कैन ऑल्सो लेट अदर्स लीड। At times, you can just simply follow and be in your gentle self. हर समय आपको जरूरी नहीं है कि you have to be very strong. तो जो three truths you are ready to embody is you are very much you are a creative person and आपको अपनी creativity को और ज्यादा अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए, जो आपके वर्थ को बढ़ाएगी, आपकी विजिबिलिटी उनको हील करेगी। एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स को बाहर लेकर आइए। आप बड़े से बड़ा चैलेंज का सामना कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक डाउट था तो अब इसके बाद एटलीस्ट मत करना।
क्योंकि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। देन वी हैव गॉट एट ऑफ कप्स, अपनी जेंटलर साइड को, अपनी सॉफ्टर साइड को भी अपनी लीडरशिप में लेकर आओ। एंड यू विल सी कि जो लोग आपसे रिजिड भी थे ना, वो भी वो भी आपकी बात मानने लगेंगे, आपको सुनने लगेंगे, आपको मानने लगेंगे। So yes, these were the truths you are ready to embody. अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपका नर्वस सिस्टम अब क्या मैसेज सुनना चाहता है जिससे उसे सेफ और फील जिससे उसे सेफ महसूस हो। तो आपका नर्वस सिस्टम डांस करना चाहता है, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। यू नीड टू से दिस थिंग आउट लाउड टू योर सेल्फ दैट आई एम सेफ टू एक्सप्रेस, आई एम सेफ टू मूव माई बॉडी, आई एम सेफ टू बी माई सेल्फ। उससे आपके नर्वस सिस्टम को सेफ्टी फील होगी, उसे अच्छा महसूस होगा। और जो एक एक्सटीरियर उसने ले लिया है, एक गार्डिंग जो उसने आपने रखी है अपनी तरफ, अपने दिल को जो छुपा लिया है, वो सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आना शुरू होगी जैसे जैसे सेफ्टी इंस्टॉल होगी। So that it's safe to be myself. This is the message you need to reiterate to yourself again and again. It's safe to be myself. I am safe to be myself. जितना ज्यादा आप इस एफर्मेशन को बार बार बोलोगे, आपको आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा और आप लाइफ को एक अलग ढंग से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से जी पाओगे। एंड इफ पॉसिबल, डू सम डांसिंग, do some free movement actually. Just get some music playing and just allow yourself to move, listen to your body and just flow in that, just like my hands are flowing right now. So in a similar way, अपनी अपने आप को आप फ्लो होने दीजिए। तो वो क्या स्मॉल एक्शंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी वर्थ और विजिबिलिटी को ऑनर करने के लिए। तो लेट्स सी हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव हियर। वी हैव टोटल 5 cards. So there are 5 action steps that you can take to honor your visibility and to honor your self-worth. Okay. So the first message we have is death. डट के सामना करना चैलेंजेस का। दिस इज व्हाट यू कैन डू टू ऑनर योर वर्थ। जब आप डट के सामना करोगे चैलेंजेस का, डट के सामना करोगे अपने फियर्स का, आई मीन डेथ इज प्रोबेबली द बिगेस्ट फियर ऑफ ऑल ऑफ अस हैव। कोई कितना भी डिनाई कर ले, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फियर ऑफ डेथ को कॉन्कर किया है। तो चाहे आप कितना भी डिनाई कर लो, डेथ का फियर हर किसी के अंदर है। अपनी डेथ का फियर हो सकता है, अपने प्रियजनों के डेथ का फियर हो सकता है। तो ये फियर है, हम सबके अंदर है ये फियर, और हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। सो फेस योर फियर्स, फेस योर फियर्स। जब आपका जो ये फियर ऑफ इनविजिबिलिटी है आपके सामने आता है, ये जो इनविजिबिलिटी वूंड आता है ना, तो इस वूंड से घबराओ मत। इस वूंड को एक्सपीरियंस करो, इस वूंड को फील होने दो। जब आप इसको फील होने दोगे, जब आप इसका डट के सामना करोगे खुली बाहों के साथ, तब ये अपने आप डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा ये वूंड। इसे अक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, बिकॉज यू आर फीलिंग अननोटिस्ड, यू आर फीलिंग अक्नॉलेज। तो समवेयर आप अपनी वूंड्स के साथ, अपनी इनर चाइल्ड के साथ वही कर रहे हो। तो जब आप उसको अक्नॉलेज करोगे, आप उसको नोटिस करोगे, तो द सेम थिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर लाइफ एज वेल, इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड एज वेल। तो द फर्स्ट मैसेज इज फेस योर फियर्स। अपने wounds का सामना करो, उनसे डरो मत। नेक्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन, वर्क विद द मून, वर्क विद द मून। मून जो है बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन की पावर्स को आपकी बढ़ाएगा। और कुछ नहीं तो ट्राई टू डू सम मून गेजिंग। दिन के समय आप मेडिटेशन करो ना करो, रात के समय सोने से पहले थोड़ी देर का मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हील करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, अपने आप को स्पिरिचुअल होने दीजिए। स्पिरिचुअल होने का एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन आई हैड लर्न फ्रॉम समवन, अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा। तो स्पिरिचुअल कौन है? स्पिरिचुअल मीन्स कि गेटिंग टू नो योर ओन स्पिरिट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आध्यात्म, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा से जुड़ जाना। तो अलाउ योर सेल्फ टू गेट कनेक्टेड विद योर स्पिरिट। तो वो कैसे होगा? उसका एक बहुत ही लेट्स नॉट से सरल मार्ग, क्योंकि वो सबके लिए सरल नहीं होता, बट मेडिटेशन इज अ वे एंड साइलेंस इज अ वे, लिसनिंग टू योर इमोशंस इन अ वे। जब आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को सुनना शुरू कर देते हो,
जितना ज्यादा आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड होते जाओगे, और उतना ज्यादा आपके पास पावर आती जाएगी बहुत कुछ अपनी लाइफ में समझने की, कंट्रोल करने की। आपकी लाइफ के सिचुएशंस पे आपको बहुत सारी शक्ति आएगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। So yes, get connected with your intuition and do some night meditation. I would recommend. सोने से पहले कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेट करो, या फिर जस्ट सिट इन सम साइलेंस, कुछ भी नहीं, बस साइलेंस में 2 मिनट बैठ भी जाओ, दैट इज ऑल्सो ओके। एंड अगर हो सके ना तो ट्राई टू विजुअलाइज मून। जो पूर्णिमा का चांद होता है ना, पूरा फुल मून, उस फुल मून को अपने अंदर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, और उस ठंडक को अपने अंदर लेकर जाइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर अ मेडिटेशन हियर विद यू ऑन यूट्यूब, जो कि आपको हेल्प करेगा, फुल मून की, जो ऐसे फुल मून को एम्बॉडी करने में आपकी हेल्प करेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू create a meditation and share it here with you. Next is Four of Cups. The next action that you can take is look at the opportunities around you. आपके आसपास और क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हैं, उसको हाँ बोलिए। अगर व्हेन आई से हाँ बोलिए, इसका मतलब ये हो, यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, इफ यू कैन सी हियर ना, तो ये इधर मुंह फेर के बैठी है और इस तरफ से एक डिवाइन हैंड इसे शेल्स पकड़ा रहा है, कुछ पकड़ा रहा है। तो इट मीन्स कि टेक सम हेल्प। अगर आपको हेल्प मिलती है ना, तो आप हेल्प लीजिए। एंड कहीं पे खोए हुए हो, आप अपने ही चीजों में खो जाते हो आप कभी कभी। तो जब आप खो जाओ, जब आपको लगे कि आपके लिए, अपने आप के लिए मुश्किल हो रहा है बाहर आना इस सिचुएशन से, आपने ज्यादा समय दे दिया है अपनी इस सिचुएशन को, तो उस मोमेंट पे आपके लिए सही होगा कि आप किसी से मदद लो। मदद लेना इज गुड। समटाइम्स मदद लेना इज रियली गुड, कि आप खुद उस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो, कोई और आपको मदद कर रहा है। एंड हाउ डज इट मैटर, आई फॉलो एब्राहम हिक्स। तो एब्राहम हिक्स ने से किसी ने पूछा था अलाइनमेंट के बारे में, कि मैं अलाइनमेंट में कैसे आऊं अपने आप से। आपके सेमिनार्स में आने से मैं अलाइनमेंट में आ जाता हूँ, बट ऐसे अपने आप से नहीं आ पाता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फोकस होना चाहिए अलाइनमेंट में आना, रादर दैन कि कैसे आता हूँ। अगर खुद से आ पा रहे हो, वेरी गुड। बट अगर खुद से नहीं आ पा रहे हो, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन टेकिंग सम हेल्प? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग अ सेमिनार if you can do that? So this is what I want to tell you, कि अगर आप अपने आप से बाहर नहीं आ रहे हो, तो take some help, and there are multiple people here available to help, so you do not need to depend on only one person. Just आप अपनी हेल्प को भी, आप अपने सपोर्ट सिस्टम को भी इंक्रीज करके रखो, कि देयर शुड बी मल्टीपल पीपल जिनके पास आप जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्टार कार्ड. And this card is one of my favorites card. I just love this card. I love it so much. इसकी वाइब बहुत ही सुंदर है. She just feels so wise to me, so powerful, so mystic to me. बहुत ही ज्यादा mystic, powerful, वैसी वाली energy इस card से मिलती है मुझे. So what I'm getting here from this card is, if you are someone जिसे जो थोड़ा जो थोड़ा religious है, जिन्हें रिचुअल्स करना पसंद है, जिन्हें फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह दिया कि आप हर दिन आप थोड़ा तेल लो, थोड़ा उसमें घी का दिया जलाओ, और इससे आपकी समस्याएं हल होंगी, तो आपको वो रिचुअल्स करने में आसानी है, आप आसानी आसानी खुशी खुशी से वो रिचुअल्स कर सकते हो। सो इफ यू आर अ रिचुअलिस्टिक पर्सन, देन इंगेज इन सम रिचुअल्स। कुछ आप रिचुअल्स करना शुरू करिए, वैसे रिचुअल्स जो आपको हील करे। फॉर सम पीपल यहाँ पे अकल्ट का मैसेज हो सकता है, फॉर सम पीपल यहाँ पे हर्ब्स के साथ भी आप कनेक्ट करके बहुत अकल्ट फील्ड में देयर इज समथिंग कॉल्ड हर्ब मैजिक, यू कैन ट्राई हर्ब मैजिक एज वेल। वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एम्बॉडी करने में अपने न्यू ट्रूथ को, और अपने वर्थ को वापस से, अपनी विजिबिलिटी को वापस से स्टैब्लिश करने में। And then we have the last card, which is the world card. Okay, so what actions can you take? Rest and relax. World card बस यही कह रहा है कि rest and relax, that everything is unfolding in the perfect manner. The way it should unfold, ये बिल्कुल उसी तरीके से सारी की सारी चीजें unfold हो रही हैं। तो ये बिलीफ रखना है आपको, that सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए
अनफोल्ड हो रही हैं सही तरीके से। रिलैक्स करना है आपको एंड सराउंड योरसेल्फ विद फ्लावर्स एनर्जी। फ्लावर्स की एनर्जी बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही यू कैन से जेंटल होती है, बहुत ही आपके आसपास अगर आपको लगता है ना कि घर में एनवायरनमेंट थोड़ा श्रूड हो जाता है, थोड़ा झगड़ों वाला हो जाता है, बहसा बहसी आपके घर में चलते रहती है, ब्रिंग सम फ्लावर्स इन योर होम। जिस जगह पे आप बैठते हो वहां पे आप फ्लावर्स से डेकोरेशन करो। तो फ्लावर्स जो हैं, अगर हो सकता है तो रियल फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट में एक जेंटलनेस लेकर की एनर्जी लेकर आएंगे, एक प्योरिटी लेकर आएंगे, प्यार की एनर्जी को लेकर आएंगे। And I just want to take one more final message. Okay. So let's just take one more guidance, just a guidance for my viewers who have just watched this reading. Is there any final thing you want to tell them? Okay, so while I am shuffling, I'm getting this message that आपको गाइडेंस हमने दे दी है, आपको हमने मैसेजेस बता दिए हैं कि आपको क्या करना है, पर चीजें तो तभी बदलेंगी जब आप उस पे एक्शन लोगे। एनर्जी है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, बट बदलाव तभी आएगा जब आप एक्शन लोगे। किसी भी सिचुएशन में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पास फ्री विल है। तो यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास रिफ्लेक्शन का आ गया है, और हमने इन कार्ड्स में बात करी है रिफ्लेक्शन की, खुद को स्पिरिचुअल होने देने की बात करी है हमने। हमने डायरेक्ट मिरर वर्क की बात करी है, एंड आई वुड लाइक टू शो दीज टू कार्ड्स टू यू। आप देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन है। तो दोनों कार्ड्स में रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, जिससे आप अपने ट्रूथ को, आप अपने सेल्फ वर्थ को ऑनर कर पाओगे, और एक अपनी एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट कर पाओगे। एंड देन वी हैव सोर। So fly high. This is the message that I want to give you. And we have also got a full moon here. हमने full moons की भी बात करी है. So these two things, अगर आप और कुछ नहीं यहाँ से लेके जाना चाहते हो इस रीडिंग से, तो ये दो चीजें जरूर लेके जाओ। रिफ्लेक्शन करना शुरू करो। मिरर वर्क नहीं करना है अभी, मत करो। रिफ्लेक्शन करो अपने ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर। जब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, तब तक चेंज नहीं आएगा लाइफ में। और हमेशा दोष दूसरों पे नहीं डालना होता है। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों, हमसे कहाँ पे क्या चूक हुई। या तो हमें रिफ्लेक्शन करने की बहुत जरूरी है। एंड यस, रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में हमसे कोई चूक हो रही होती है, बट यस, sometimes we need to understand कि where could I be better, where can I do better, मेरे से how can I now take responsibility of this situation। अब तक तो लोगों के हाथ में डोर थी, अब डोर मैं अपने हाथों में वापस कैसे लूं, ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है, और उसमें रिफ्लेक्शन आपकी मदद करेगा। देन वी हैव सोर, एंड जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, ऑलवेज फ्लाई हाई। एंड फुल मून का मेडिटेशन जरूर कीजिए। नॉट फुल मून मेडिटेशन, बट द विजुअलाइजेशन दैट आई हैव टोल्ड यू, कि रात में सोने से पहले कुछ समय तक आंखें बंद करके चांद को विजुअलाइज कीजिए, फुल मून को, और उसकी शांति को ना अपने अंदर लेकर जाना, उसको महसूस करना शुरू कीजिए। तो ये करने से आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी, और स्लीप क्वालिटी बेटर होगी तो आपका अगला आने वाले दिन के भी बेटर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। So yes, this is the message that I have got. And one more message I want to give you. See, messages कम नहीं होते, बहुत आने लगते हैं. Then we have got Three of Cups as well. Not Three of Cups, but Three of Cups की भी energy carry कर रहा है ये soar card. So allow yourself to move, just keep moving around. Let your body flow, let yourself choose the flow. कभी कभी फ्लो में बह जाना भी अच्छा होता है। हमेशा नदी के साथ हमें चैलेंज ही नहीं लेना, कि नदी अगर इधर बह रही है तो मैं उससे तेज तैराकी करके दूसरी तरफ जाऊंगा, नहीं। हमेशा नदी की धार को काटना नहीं होता है, कभी कभी उस धार के साथ बहना भी होता है। So yes, we are done with today's messages, and I hope ये reading आपको पसंद आई। It's a different reading than the, not very much different, but a little different than the other readings that I have done on my channel. So पिछली readings में हम different, normally guidance ये चीजें लेते थे, but from now on I'm thinking of
getting diving deep into some emotional healing. You can say कि some bringing some healing basically to the viewers who are watching this with these videos. So I hope ये reading आपको पसंद आए. Do let me know in the comment box आपका कैसा experience रहा. And in a few days, I'll see you back in some other reading. Till then, take care. Bye bye. Thank you.